मेरा पिता तू मेरा माता तू मेरा बांधवा तू मेरा दाता तू मेरा बांधवा तू मेरा दाता। परमात्मा गुरुदेव सावण कृपाल ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੁਆਰੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨਹਾਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੋਈ ਕਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਾਮ ਨੇ ਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਲ ਤਿਲ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ, ਰਤੀ ਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾ ਕੰਨੀ ਨਾ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, 2 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੇ। ਐਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣ 'ਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਦ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਪੜਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਕੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਓਲੇ ਹੋਇਆ
बर्दाश्त नहीं कर सकता गा। वो चाहता है कि मैं सदा ही इस मनमोहनी मूर्त नूं अगे बिठा के तकदा रवां। प्यारिओ, संत सतगुरु जद आपदे सेवक नूं शब्द नाम दा भेद दिंदे है, आपदा नूरी स्वरूप शब्द स्वरूप सेवक दे अंदर रख दिंदे है, वो बड़ा प्रकाशमान स्वरूप हुंदा है, बड़ा ही वो शांत हुंदा है। वो सेवक दी सदा अंदरों अगवाई करता है और वो भुल गुरु हुंदा है, वो भुलदा नहीं गा। हमेशा ही सेवक जद उस रूप नूं अंदर प्रगट कर लैंदा है, ओदा मन भी जिहड़ा विषय विकारां दी अग विच सड़दा सी जलदा सी, वो अग्नि शांत होके ठंडा बर्फ की तरह हो जाता है। परमात्मा सावन आपदे सत्संग अंदर कई दफा एक कहानी सुणाउंदे सी कि अमीर खुसरो मल्तान दे हाकम दा सूबे दा नौकर सीगा। किसी गलों की अणबण हो गई, वो आपकी रिटायरमेंट लैके जो पैसा टका हिसाब किताब का सी, उन्हीं दिनी चांदी की करंसी हुंदी सी, वो लद के दिल्ली नूं तुर पिया, क्योंकि दिल्ली अंदर उहदा प्यारा मुर्शद निजामुद्दीन औलिया रह रहा सीगा। अगे ऐसी करनी हुई कि एक सिख ने आपदी लड़की की शादी करनी सी और उस गरीबी ने दबाया होया सीगा। उन्हें ख्याल किया कि जाके पीर तो कुछ ना कुछ लियाइए। वो जाके बेनती करने लग्या कि जी मैं लड़की की शादी करनी है, मेरी कुछ मदद करो। वो कहने लगे तू बैठ बई, जो कुछ सानू चढ़ावा चढ़ेगा वो तुसी लै जाओ। मालिक दी मौज हुई, कुछ भी ना आया। कहंदे होर एक दिन इंतजार कर, फिर भी ना आया कुछ। तीसरे दिन फिर इंतजार की, जब कुछ भी ना आया, वो सेवक नाराज होने लग्या और निजामुद्दीन औलिया कहने लग्या देख भी प्यारिया, आ मेरी जुत्ती है, होर तां मेरे कोल कुछ है नहीं गा, ये तू ले जा। उन्हें टुटे हुए दिल नाल जुत्ती चुक ली कि जदों परमात्मा ना देवे फकीरां ने की देना सीगा। और वो जुत्ती लेके तुरया। अग्गों अमीर खुसरो गुरुआं दे दर्शनां नूं आ रहा सीगा। ओनू महक आउण लग पई। जिवें जिवें वो बंदा नेड़े आउंदा जावे उवें उवें महक जिहड़ी सी वो ज्यादा बढ़दी गई। जद वो कोल दी लंघ चलिया, महक पिछले पासों आउण लग पई। ਉਹਦੇ दिल च ख्याल आया कि आ जिहड़ी महक है इस बंदे विच ही है, ये बंदे चो ही राज है। वो पिछा हट के कहने लग्या तू कित्थों आया है, कित्थे जाना है। वो कहने लग्या मैं लड़की की शादी करनी सीगी, मैं निजामुद्दीन औलिया पास गया सी कि मेरी कोई मदद करेगा, लेकिन फकीर आप नंगे भुखे हुंदे है, वो जब भगवान ना देवे उन्होंने की देना है। वो कहने लग्या वो तेनू कुछ दिता भी है। वो कहने लग्या हाँ, आ मैनू एक जुत्ती दिती है। वो कहने लग्या कि एदा की लेना तैं। वो कहने लग्या भी मैं की लेना सीगा, जो तेरी मर्जी है तू दे दे। वो कहने लगा देख भी प्यारिया, मैं इसका मुल तो तार नहीं सकता गा, क्योंकि वो मुल वस्तु है मेरे गुरु दे पवित्र चरणों के नाल लगी हुई है। लेकिन जो कुछ मेरे विच हैसियत है वो मैं तेनू दे देना है। एक ऊंट बाल बच्चों का रख के धन दा, बाकी दे सारा जो कोले जिंदगी का कमाया हुआ सी सारा ही उसनू दे दिता। चक के जुत्ती सिर ते रख ली, निजामुद्दीन औलिया दे पास चलिया गया, जाके अगे जुत्ती रख दी कि जी इनू तुसी पहनो। वो कहने लगे अमीर खुसरो ये तू कित्थों लई है। उन्हें रस्ते का सारा हाल सुना दिता। कहने लगे की तैं दिता। वो कहने लगा जी जो कुछ सी मैं वो दे दिता, लेकिन एदी की कीमत है वो तो मैं तार नहीं सकिया। फिर भी निजामुद्दीन औलिया ने प्यार ना गले ना ला के कहने लगे कि फिर भी तेनू सस्ती है। आखिर उहदे इश्क नू देख के ये कहा कि जद आखिरी टाइम आए एदी कबर
निजामो अमीर खुसरो दी मेरे पास ना बनायो, अगर बनाई तो कद मेरी कबर फट जाएगी। कहण दा भाव कि जदों मुर्शद दा इश्क, गुरु दा इश्क, गुरु दा प्यार जाग पैंदा है, ऐसा सेवक दुनिया दी कोई वस्तु मंगण वास्ते तैयार नहीं हुंदागा। वो मंगदा है तो गुरु ही मंगदा है, गुरु दा प्यार ही मंगदा है। कबीर साहब दे शब्द नंबर 17 संतां दी बाणी पन्ना 118। प्रीत लगी तुम नाम की, पल बिसरे नाही, नजर करो अब मेहर की, मोहे मिलो गोसाई। कबीर साहब बड़े प्यार नाल कहंदे है कि मेरी प्रीत तेरे नाम नाल लग गई है। प्रीत नाम नाल उदों ही लगदी है, नाम लैण दा उदों ही दिल दे विच उत्साह पैदा हुंदा है जदों आद करता सचखंड दे विच ये फैसला कर लैंदा है कि यह आत्मा बड़ी भटक चुकी है, क्योंकि जन्म तो लैके यह पशु पंछियां दे जामियां विच भटक रही है। जद किते इंसान दा जामा मिलिया उदों भी इन्हें चैन ना नहीं कटियागा, उदों ही विषय विकारां दे जंगल विच दुखां मुसीबतां दे विच भटकदी रही है। वो जदों परमात्मा भटकदी आत्मा नूं मेहर करदा है, दया करदा है, तो फिर उहदे दिल अंदर खुद ही नाम की इच्छा पैदा करता है। आप ही मेहर करके किसी ऐसे संत महात्मा नाल वो मिलाप कराउंदा है जो नाम जप के नाम रूप ही हो चुके हुंदे है। अगर वो दया करता है, परमात्मा साहब ने कहंदे हुंदे सीगे ये पहला तो तय करया हुंदा है कि इस नूं पूरा गुरु मिलेगा या नहीं, या इस नूं गुरु ते भरोसा आएगा या नहीं आएगा, या ये नाम लेके कमाई करेगा या अगले जन्म ते पाएगा। ये सारा कुछ पहला तो तय होया हुंदा है। इस वास्ते कबीर साहब कहंदे है कि मेरी इस तरह नाम ना प्रीत लग गई है, हुण ना उठदियां ना बहदियां ना सुत्यां ना जागदियां मैं विसर नहीं सकदा, भुला नहीं सकदा। कुदरती असूल है कि जिस वस्तु नाल साडा प्यार है वो बिना याद कीतियां भी साडे दिल दे विच उहदी तस्वीर उकरी जांदी है, याद आउंदा रहिंदा है। मच्छी नूं पानी नाल प्यार हुंदा है, प्रीत हुंदी है, जदों उहनूं शिकारी फड़ लैंदे है और उस नूं मसाले ला के भुन्निया जांदा है, जिस दे पेट विच जांदी है उत्थे भी वो आपदी प्रीत पानी दी नहीं छड्डदी गी, क्योंकि मच्छी खाण वाले नूं प्यास ज्यादा लगदी है। इस वास्ते पेट विच जाके भी वो आपदा प्यार जिहड़ा पानी नाल है वो ज़ाहिर कर दिंदी है। नजर करो अब मेहर की, मोहे मिलो गोसाई। हुण आप प्यार ना कहंदे है, जिस तरह तू आप ही प्यार लाया नाम नाल जोड़िया, ते असीं कलयुगी जी भुल्ले भटके तेरे नाम नूं की समझ सकदे सी कि साडे वस विच हुंदा। गुरु अर्जन साहब कहंदे है आपन लिया जे मिलै ते विछड़न को रोवन, अगर साडे अपने वस हुंदा असीं तेथों विछड़दे ही क्यों। तो कबीर साहब कहंदे है जिवें दया करके तू नाम दिता है, नाम दा उत्साह पैदा कीता है, हुण आपदी नज़र भी कर, मेहर दी दया दी नज़र कर, ताकि असीं इस नूं जप सकीए, असीं भी नाम दे विच मिक्स होके नाम रूप हो सकीए। गुरु नानक कहंदे नानक नदरी नदर निहाल, अगर वो मेहर भरी नदर करदा है वो परमात्मा रूप गुरु, तद ही असीं उस नाम दी कमाई कर सकते हैं, सत्संग विच जा सकते हैं।
गुरु गोबिंद सिंह दा बड़ा कमाई वाला सिख भाई नंद लाल सी। उसने आपदे गुरुदेव दे अगे खड़ के यही अरदास की कि तेरी एक नजर है, मेरा जिंदगी दा सवाल है। हजरत बाहू ने कहा सी कि एक नजर जे मुर्शिद तके लख करोड़ा तारे हूँ, लख निगाह जे आलम तके किसे ना कंधी चाड़े हूँ। नजर करो अब मेहर की, मोहे मिलो गोसाई। बिरह सतावे मोह को, जीव तपड़े मेरा। तुम देखन की चाहो है, प्रभ मिलो सवेरा। सब धर्म ये इतफाक करते है, सानू लारे लाउंदे है कि मरण तो बाद थानू स्वर्ग मिलणगे, मुक्ति मिलेगी। लेकिन संत दे विच ना विश्वास नहीं कर देगे। वो कहते ये सच नहीं, पता नहीं मरिया पिछों मुक्ति मिलेगी या साडी की हालत होएगी। संत तो ये कहते है कि जिंदे जी अगर अनपढ़ हैं, मोया पिछों असी कोई आलम फाजल नहीं बन जाना। अगर जिंदे होए असी कामी है, क्रोधी, लालची, भैड़े खोटे कर्म करते हैं, तो असी मर के महात्मा नहीं बन सकते। संत तो ये कहते है कि जिंदे जी महात्मा बनना है, जिंदे जी परमात्मा नू पाउणा है, जिंदे जी मुक्ति हासिल करनी है। ना संत आपदे सेवकां नू लारा लाउंदे है। वो तो सानू ये कहते है, भगत नामदेव जी, मुए हुए जे मुक्त देओगे, मुक्त न होए कोयला। कबीर साहब ऐसी पत्नी दी मिसाल दिंदे है जेड़ी पेकियां कर बैठी पति दे संदेश दी इंतजार करदी है। पति उसनू संदेश भी भेजदा है, साथ में डोली भी भेजदा है। डोली नू 4 कुहार चुकदे है। अज भी हिंदुस्तान च ऐसा रिवाज देखने नू मिलता है। और ओदी ओ डोली चुक के, ओ डोली चुकने वाले कुहार जमदूत है, ओनू वजाए उस दे पति दे घर ले जाण दे, ओदे महलां विच ले जाण दे, ओनू होर ही किसी मुल्क विच लै जांदे है। जद उत्थे वो आत्मा पत्नी जांदी है, उत्थे ना तां आपदा पति परमात्मा गुरुदेव देखदी है, ना उत्थे आपदे संगी साथी देखदी है, ना जिन्हां लोकां ने समाजिक इत्थे वायदे कीते हुंदे है ओही उत्थे दिसदे है। और पति उन्हां जमां दे अगे तरले, पत्नी आत्मा उन्हां जमां दे अगे तरले करदी है कि मेरी तुसी जिहड़ी डोली है इनू वापस उस मुल्क विच लै चलो। वो संसार विच आउणा चाहुंदी है, लेकिन उत्थे उसदी कौन सुनदा है। ना उत्थे कोई संगी है, ना साथी है, ना कोई जान पछाण वाला ही है। महात्मा सानू ऐसी पत्नी दी मिसाल दे के भी समझाउंदे है कि जिवें कोई पत्नी जंगल विच रात दे वक्त रस्ता भुल जांदी है, पति तो विछड़ जाती है, और उन्होंने कोई ऐसा आगू मिल जाता है जेड़ा उहदे नाल वायदा करता है कि मैं रस्ते दा जानू है, मैं तेनू आराम नाल तेरे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन रात पै जाती है, बदल सूरज नू ढक लेंदे है। वो जंगल दे विच जेड़ा ये वायदा करदा सी कि मैं रस्ते दा वाकफ है, वो खुद ही इत्थे विषे बकारां दे जंगल विच आप भुल जाता है। वो भाई या प्रोत पुजारी सारे इस श्रेणी विच आ जाते हैं जेड़े कि ये वायदा करते हैं कि असी सब रस्तियां दे वाकफ हैं, थानू असी आराम ना करे पहुंचा देवांगे। वो पत्नी जद उथे देखदी है कि जिसने मेरे नाल वायदा कीता सी ये खुद ही आप जंगल दे विच भुलिया फिरदा है, इनू खुद ही रस्ते दा नहीं पतागा। इस वास्ते वो पत्नी हैरान भी हुंदी है, परेशान भी हुंदी है कि मैं ऐसे आगू दा क्यों
लड़ फड़ लिया है। इस वास्ते संत महात्मा सानू प्यार ना कहते है कि सानू उस दे लड़ लगना चाहिए है कि जेड़ा खुद इन्हां रस्तियां दा वाकफ है। संतां दी ड्यूटी बाहर नालों अंदर बहुत वध जाती है। गुरु नानक कहते विखड़े दाओ नंगावा मेरा सतगुर। अगे बड़े ही विखड़े रस्ते है, बड़े ही काल ने ऐसे कुर्रे बनाए हुए है कि जिहदे विचों ऐसियां भूल भुलाइयां बनाइयां होइयां हन। बगैर जेड़ा रहबर रोज उथों दी जांदा आउंदा नहींगा, जेड़ा रोज दा वाकफ नहींगा, वो सानू ओही ले जा सकदा है। दूसरा सानू किस तरह ले जा सकदा है? ना उत्थे पढ़िया लिखिया ले जा सकदा है, ना कोई विद्वान ले जा सकदा है। तुम देखण की चाहो है, प्रभु मिलो सवेरा। नैना तर से दर्श को, पल पलक ना लागे। हुण आप कहंदे है सिर्फ तेरे दर्शनां दी तांग है, तेरे प्यार दी तांग है, तेरे मिलाप दी तांग है। अख नाल अख पलक ना पलक नहीं लगदी गी कि कद इन्हां पलकां विच आवे मैं इन्हां पलकां नूं बंद कर लवां। ना मैं खुद किसी नूं देखां, ना मैं तैनूं किसी नूं देखण देवां। कबीर साहब कहते हैं जब आवे तू आँख में आँख चाप में लूं, ना मैं देखा और को ना तुझे देखण दे। परमात्मा कृपाल सदा मजनू लैला दी मिसाल दे के समझाउंदे हुंदे सीगे। बेशक उन्हां दा मजाजी इश्क सीगा, लेकिन वो विषे वकारां दे विच लिबड़े होए नहीं सी। उन्हां दा अखां दा प्यार सी, बड़ी मुहब्बत सी। वो एक दिन कोई ऊंट वाला लैला दे शहर नूं जा रहा सीगा। मजनू उस दे नाल साथ रल गया। 12 मील वो लैला नूं स्नेही दिंदा गया, उहनूं ये कहना है वो कहना है। इतनी गल वो करदा करदा 12 मील चलिया गया, लेकिन वो लैला दी कहानी जिहड़ी सी खत्म नहीं हुई। उदों पता लग्या कि मैं ऊंट दे नाल इतना भज्या है। इसे तरह उन्हां दी हिस्टरी च आउंदा है एक दफा कुत्ते नूं प्यार करदा देखा गया। किसी ने पूछया कि मियां मजनू तू कुत्ते नाल प्यार करदा इहनूं चुमदा है? वो कहंदा कदे कदे लैली दी गली विच फेरा पा लैंदा है। इसे तरह एक दिन पौण जा रही सी वो लैली दे घर दी तरफ। वो उस पौण नूं स्नेह दे रहा सीगा कि मेरे तू जाके प्यार दी मेरे दिल दी उस नूं कहानी सुनाई। उन्हां दी हिस्टरी च आउंदा है कि लैला रंग दी बड़ी काली सी, मजनू गोरा सीगा। किसी ने ताना मारिया कि तू एडी काली दे नाल प्यार करदा है। वो कहन लग्या थानू अद्धी शक्ल लैला दी दीदी है, सिर्फ मजनू ने ही सारी शक्ल दीदी है। वो कहन लग्या कि तुसी मजनू दी अख नाल लैला नूं देखो ते थानू पता लगे, क्योंकि सोहना प्यार हुंदा है। कोई हुसन नहीं सोहना हुंदागा, ओही हुसन सोहना लगन लग जांदा है जिथे तुहाडा प्यार है। मैनू किसी बेससंगी ने मेरे ही पिंड दे मेरे खास रिश्तेदार ने सवाल किया सीगा कि तू इतना कृपाल दे उत्ते विख्या फिरदा है, आखिर है तां इंसान ही। मैं उन्हें बड़ा हस के प्यार ना कहा कि अगर तू उस नूं देख लवें मेरी अख दे नाल, तेनू पता लगे कि किन्ना ओहदा प्रकाश है। रोम रोम दे विचों करोड़ां सूरज फुट फुट के निकलते हैं, किन्ना वो शांत है। बेशक चंद्रमा शांत है, लेकिन वो शांत इस चंद्रमा तो भी ज्यादा है। सो अगर देख ले तू सूरज कनी अख नहीं कर सकदा, ओहदा तेज सूरज तो भी ज्यादा है। सूरज अंदर तपश है, लेकिन ओहदे विच तपश नहीं, बगैर तपश तो है। चंद्रमा च दाग है, वो परमात्मा कृपाल च कोई दाग नहीं गा। जब उस बंदे ने नामदान प्राप्त किया, मैं उसनूं प्यार ना पूछण लग्या सुना भाई कैसा लग्या। मैनू आदा की दसा, शेर वर्गी अख है, प्रकाश चलिया नहीं गया, कोई सवाल तां पासे नहीं रहा। मैं होर दी की दसा, मेरा भाई सी, साथों सब भैन भरावां तो बड़ा सीगा। ओहदे दिल दे विच
जद मेरे वास्ते हमदर्दी दी लहर उठी, मैनू कहन लग्या तेरे उत्ते कृपाल ने जादू कर दिता है, तेरा दिमाग ठीक नहीं, जिहड़ा सारा दिन उसनू सुता जागदा गाई जाना है। चल अंबरसर तेरे असी बिजलियां लवा लेइए, तेरा पागलपन ठीक हो जाएगा। मैं ओनू हस के कहा हाँ जादू का वाकई कीता है। वो सिर चढ़ के बोली जाता है मेरे कोई वस है, प्यारिया तू आपदा दिमाग ठीक कर, मेरे दिमाग का फिक्र ना कर, तैनू इसे ने सामना है। जब उसकी मौत आई कुछ ही साल होए है, आखिरी टाइम आया, बाहरों अचानक तुरया आया, आके कहन लग्या कि मैनू 4 कसाइयां ने पकड़ लिया है। थोड़े टाइम बाद कहन लग्या कि मैनू उस परमात्मा कृपाल ने बचा लिया है, साम लिया है। पहला मेरे परिवार दे विचों कोई सत्संग ते नहीं आउंदा सी, कोई नामदान नहीं लैंदा सी। उस तो बाद सब ने नामदान भी लिया, हर सत्संग ते भी आउंदे है। सो पता लगदा है जद गुरु दी संभाल देखते हैं या गुरु का प्यार देखते हैं या उन्हां दी तलीम के उत्ते अमल करके असी अंदर जाके अखां नाल उस सच्चाई नूं खुद देख लेने हैं। मैं जद कैलगरी कनेडा विच सत्संग करने वास्ते गया, उत्थे अमरीकन बजुर्ग माता आई, उन्हें आपके पति के संभाल बारे दसिया। बेशक वो कहने लगी मैं नाम लेवा नहीं, मेरा पति भी नाम लेवा नहीं, मेरियां लड़कियां 2 नाम लेवा हैं। घर दे अंदर थोड़ी गुरु कृपाल दी हमेशा चर्चा रहिंदी सी, असी बड़े सुन के खुश हुंदे सी, सानू भी बड़ा भरोसा सीगा। वो कहने लगी कुछ दिन होया मेरे पति दा आखिरी टाइम आया, असी अखां नाल उत्थे थोड़े गुरुदेव दी संभाल देखी, सानू कोई शक नहींगा कि मेरे पति दी किस तरह तेरे गुरु ने संभाल की है। मैं सिर्फ इत्थे धन्नवाद करने वास्ते कैलगरी विच तुहाडा आई है। उन्हें सत्संग 7 दिन उत्थे टाइम लाया। मेरा कहने का भाव इतना ही है कि असी बाहरों तो उसनू इंसान समझते हैं, लेकिन इन्हां इंसानां तो साडे तो उपर हुंदा है। जद बुल्ले शाह नूं ओहदे भैण भरावां ने पूछया कि तू सजद होके राइयां कोले जाना है, ऐसी उन्हां विच की खूबी है। वो कहन लग्या जे तां कोई बाहरों अनायत नूं देखे तो ओहदे गल विच लीरां ही पाईयां होईयां हन, चमदा ही शरीर है, पर जे कोई अंदर देख ले जाके तो बिस दे विच भी थुकदा नहींगा। गुरु नानक ने कहा गुर को मैं नख का रूप न जान। गुरु अर्जन देव ने कहा हर जियो राम, हर जियो नाम पढ़ो रामदास। बुल्ले शाह ने भी कहा है मौला आदमी बनाया, वाह वाह आया जग जगाया। जद इस गरीब आत्मा जिहड़ी तुहाडे सामने बैठी है इहदी समझ विच आया परमात्मा कृपाल दी ही दया ना, तो यही क्या रब बंदा बन के आया। इंसान का जामा तो सिर्फ सानू सुतियां रूहां नूं जगाउण वास्ते उन्हें धारण किया हुंदा है, और लेकिन वो दुनिया दे विच रहिंदा होया दुनिया दीयां महलां दे विच नहीं लिबड़दागा। ओहदा स्वरूप होर भी है। स्वामी जी महाराज ने सेवक दे रूप विच बेनती कीती है गुरु मोए अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मोह को पर वो भी दर्शाओ, क्योंकि साडी अल्फ भी जिहड़ी है वो देह तो शुरू हुंदी है। अगर देह ना प्यार ना होवे असी अंदर एक कदम भी पुट नहीं सकते। अगर देह धार के संत ना आउण सानू अंदरला भेद कौन दे सकदा है, कौन अंदर जा सकदा है, साडियां कौन गलतियां दस सकदा है, कौन साडी सुती आत्मा नूं जगा सकदा है। नैना तरसे दर्श को पल पलक ना लागे, दर्द वंद दीदारे का निस बासर जागे। जो अब के प्रीतम मिले करूं निमखन न्यारा। जिन्हों विछोड़े का दर्द है कि वो रात नूं रज के सौ सकता है।
ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤੀ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਆਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕੋਲ ਤਨੀ ਗਲ ਲਾਇਆ ਸੱਜਣ ਬਿਥ ਰਹੀ ਨਾ ਮਾਸਾ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਸੇਤੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਜੈਸੇ ਖੰਡ ਪਤਾਸਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸੌਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। जो अब के प्रीतम मिले करुण निमखन न्यारा, अब कबीर गुरु पाया मिला प्राण प्यारा। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਲਵੇਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। क्या जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जल्दी या देर से, क्या एक दिन सभी लोग पूरे गुरु के पास आ जाएंगे? हर आत्मा का वक्त मुकर्रर है। जब हम गुरु के शारीरिक रूप से दूर होते हैं और खाना खाने लगते हैं, तो खाना खाने से पहले अगर हम सिमरन करें और गुरु के स्वरूप को याद करें, तो क्या वो खाना जो हम खा रहे होते हैं या खाने जा रहे होते हैं, क्या वो भी वैसा ही प्रसाद बन जाता है जैसा कि गुरु ने अपने हाथ से बनाया होता है? जब तुम याद करोगे तो क्यों नहीं प्रसाद बनेगा। जैसे ख्याल रखोगे वैसा ही ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੈ। ਡਲਹੌਜੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। तो सारी संगत इस तरह हाथ जोड़ के अखां बंद करके बैठी थी। महाराज सावन सिंह दा फुलका तैयार सीगा। जिस लड़की ने फुलका तैयार किया वो इंतजार दे विच सी भी फुलका ठर जाएगा, ये फुलका खान। तो हजूर नूं जद उन्होंने बार बार बेनती की, हजूर कहन लगे काको मैनू तो भोग लग रहा है, मैनू तो खवा रहे है, मैं इस वेले रजिया है। उस लड़की ने संगत नूं कहा भी तुसी खाना खाओ, ध्यान छड्डो, हजूर नूं भी खाना खाण दो। तो कहण दा भाव, जब तुसी गुरु दा ध्यान करोगे ते
ਤੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਸੀਤਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਨਵੀਂ ਜੀ ਬਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਣੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਗਰਾਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬਗੈਰ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਮੇਰੀ। ਪੱਪੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਈ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਓਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਸੀਤਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਸੀਤਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮਝੋਗੇ, ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜੂਠ ਛੱਡ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਜੈਸਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਆਲ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਂ ਪਕਾਇਆ, ਤੈਂ ਪਰੋਸਿਆ, ਤੈਂ ਖਾਧਾ, ਤੈਂ ਅਗੋਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਬਦ ਬਹਾਲਾ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ, ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾ, आपे चुली करावै, आपे बैठ परोसा भांडे, आपे ही बैठ खावै। मैं जानती हूँ कि गुरु हमें कभी भी नहीं छोड़ता और हम हमेशा गुरु के साथ में रहते हैं। बेशक कोई चोरा छोड़ जाए लेकिन फिर भी हम उसके साथ में रहते हैं। लेकिन मैं साथ में ये भी जानती हूँ कि आज से कुछ दिनों बाद ही हम आपके शारीरिक रूप से अलग हो जाएंगे, तो जो बिछोड़े का दुख है वो वहां पे होगा। तो उसका क्या मतलब है? अगर ਅਸੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ वाले जीव ਹੁੰਦੇ हैं। मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कल सत्संग के अंदर जब आप अपने गुरु से बिछोड़े का दुख बता रहे थे, तब आपने जो आखिर में कहा वो आशिकी वाला जो था, उसके अंदर जब आपने अपना नाम अपने मुंह से लिया, तब आपकी आवाज ऐसे तब्दील हो गई कि ऐसा महसूस हुआ कि जितना भी दुख था वो उस एक वाक्य के अंदर आ गया। और शांति के अंदर ही हमें ये महसूस हुआ कि जो दुख आपके अंदर अपने गुरु के बिछोड़े का है वो अभी भी है, जैसे कि आपने कल बताया, और सिर्फ आप ही हो जो उस दुख को जान सकते हो। हाँ भाई, मैं हमेशा ही कहना हुन्ना कि मेरे जिड्डा होवे दुखी उस नूं सुणावां दुख, सदा सुखी रहे उन्हें दुख दी पछाण थी। खुसरे की जान दे ने मेथन दे स्वाद ताईं हाफजां विचारियां ने पढ़ना कराम थी। तेरे नाल वीत दी तू जानदा है जैव सिंह, गुरु छड़ जाए संसार ऐदों उत्ते मर जाना थी। काफ कदर विछोड़े दी ओ जाने जेड़ा विछड़े अपने यार कोलों, तंदरुस्त नूं सार की दुखड़े दी दुख पुछिए किसे दी मार कोलों। जो
गुरु के दर्शनां नाल पाप कटीदे है। शिश जद गुरु संसार नूं छड्ड जांदा है, उन्हां दर्शनां तो वांझा रह जांदा है। सानूं पता ही है कि जिहदे अंदर वो प्रगट हो जांदा है, साडे हर सवालों का जवाब देगा, साडे नाल हमदर्दी, साडे गुरु जिन्नी रखेगा, साडा आदर सत्कार भी करेगा, इहदे विच कोई शक नहीं गा। लेकिन असीं जो शरीरक दर्शन करते सी, उन्हां तो हमेशा वास्ते वांझे रह जाने। शायद मेरा सवाल इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये मेरे मन के अंदर है कि मैं आपसे पूछूं। मैंने एक किताब के अंदर ये पढ़ा कि जब बाबा सावन सिंह जी ने चोला छोड़ा तो उनके कई सेवकों ने आत्महत्या कर ली। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उन आत्माओं के साथ क्या हुआ। महाराज सावन सिंह आत्महत्या के हमेशा खिलाफ हुंदे सी। वो ये कहंदे हुंदे सी कि गुरु आत्महत्या करने वाले नूं अगे पुट्ठा टंग दिंदा। कल आपने सत्संग के अंदर कुछ ऐसी बात कही जो मुझे समझ नहीं आई, इसलिए मैंने पप्पू से पूछा। क्योंकि कल सत्संग में आपने ये कहा था कि लोग गुरु से कपट करते हैं, छल करते हैं और अपनी चालाकी से भक्ति करते हैं। तो मुझे वो समझ नहीं आई, इसलिए मैंने पप्पू से पूछा। तो पप्पू ने मुझे बताया कि कई दफा लोग ऐसे करते हैं कि गुरु के सामने तो रोते हैं, विराग दिखाते हैं, लेकिन जब वो गुरु से पासे होते हैं तो अपने बुरे कर्म करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से गुरु के सामने रो करके और इस तरह से आंसू बहा करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत अपनी श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, और इस तरह से छल कपट करते हैं। तो जब मैंने ये सुना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि बिल्कुल ये मेरी ही हालत थी जो मुझे पता लगी। क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ, जब मैं आपसे दूर होता हूँ तो मैं कई दफा संत मत से दूर चले गया हूँ। मैंने बहुत बुरे कर्म किए, मैंने धूम्रपान किया है और कई दफा नशीली चीजों का भी सेवन किया है, और एक दफा नहीं बल्कि कई दफा मैंने और लोगों के साथ भोग किया है, मैंने व्यभिचार किया। इसलिए मैं सबके सामने आपसे बेनती करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें और मुझे कभी भी अपने से दूर ना करें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि इस तरह के बुरे कर्म करके मैं नरक के अंदर या उससे भी कोई बुरी जगह के अंदर जाऊं। बहुत प्यारे, सत्संग सुनने का यही फायदा है, क्योंकि संत महात्मा जितने भी साडे अंदर कमजोरियां हुंदियां है, वो सत्संग के जरिए कहानी पाके अपने बचना द्वारा सानू दस दिंदे है कि ये कमजोरियां, इन्हां तो बचना है, और तद ही असीं सतगुरु की सच्ची भगती कर सकते हैं। महाराज सावन सिंह दे नाम लेवे तो गलती हुई। उसने की कीता, मुंह काला किया, छित्रां दा हार गल दे विच पाया। महाराज सावन सिंह सत्संग करके हटे सीगे, उठ पिया, कहन लग्या जी मैनू माफ कर दो। बाबा जी कहन लगे महाराज सावन सिंह जी बई सुन, एक औरत सी, उसने एक बकरा रखिया सी, एक बांदर रखिया सी। औरत ने खाना तैयार किया, दिल च ख्याल आया कि मैं दही लियावां, तो बाजार दे अंदर दही लैन चली गई। बांदर चलाक सी, बांदर ने की किया, जो खाना तैयार किया सीगा ओदा सारा खा लिया, दूध वगैरह पिया सी वो भी पी लिया, और उस तो बाद की किया उसने, जिहड़ा बकरा सीगा ਉਹਦੇ गल दे विचों रस्सा कढ़ दिता और अपने गल दे विच रस्सा पा के बैठ गया। उसके मुंह नूं थोड़ा बहुता सामान लगा दिता, ताकि देखण वाला ये कहे भाई जो कुछ खादा पीता है बकरे ने खादा है। वो औरत बाहरों आई, उसने की किया, एक सोटा लिया, वो बकरे नूं उसने काफी कुटिया, मारिया। कोई आदमी ये शैतानी वेख रहा सीगा। हुण बांदर मौज नाल रजिया बैठा, वो कहन लग्या देख इस बकरे बेचारे दा की कसूर है। कसूर तो वह भले मानस दा है जिहड़ा अखां मीची पिया है, तमाशा देख रहा है। तो महाराज सावन सिंह कहन लगे देख बई कसूर तो मनदा है और तू बदनाम तानू करदा है, कहंदे बह जा, अगे वास्ते गलती ना करी। तो कहण दा भाव इतना ही है कि अच्छी गल है कि संगत दे अंदर इस मन का पाज खोलना बड़ा अच्छा है, ताकि मन नू अगे वास्ते पता लगे कि मैं चलाकी की तो मेरे नाल इसने भी मेरे अगे हार नहीं मनी, बल्कि मेरा पाज सारी संगत के सामने नंगा किया। लेकिन
नाल ये भी हिदायत है कि अगे वास्ते हुशियार रहना है, क्योंकि मन कबीर ने चंचल घोड़ा कहा है, सिमरन दा लगाम इसनूं पाई रखना है। याद रखो, जिन्ना असीं मन दे ऐबां उपर पड़दा पावांगे उन्ना ही मन मजबूत होकर ज्यादा ऐब करेगा, क्योंकि उन्हें पता, मन भी हुशियार हो जाता है कि मेरी गल तो किसी को करदा नहीं और मेरा तो हुणे दास हो चुका है। अगर मन में पता लग जाए कि हुण मेरे वस च नहीं, ये मैनू नंगा करेगा, लोगों आगे मेरी बेपती करेगा, तो मन काफी हद तक सुधर जाता है। याद रखो, सत्संगी नूं कदे भी भुल नहीं जाना चाहिए ऐब करन लग्या भी सानू कोई देख नहीं रहा, क्योंकि सतगुरु थोड़े अंदर बैठा है शब्द रूप होके, वो जरूर देख रहा हुंदा है, लेकिन संत पढ़दा पोश हुंदे है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी कि उन्होंने खुली डोरी छड्डी हुंदी है कि शायद ये अज भी समझे और सानू हमेशा वास्ते अपने गुरुदेव नूं हाजिर नाजिर समझना चाहिए, क्योंकि साडी हर करतूत हर हरकत नूं देख रहा है। कबीर साहब कहंदे किए पाप रखे तले दराए, परबिट पे नादान जब पूछे धर्मराए। कुदरत कानून नूं याद रखो, असीं चैलेंज नहीं कर सकते गे। कुदरत कानून जो है वो किसी का लिहाज नहीं करता गा, हर एक का लेखा जोखा वो करन लगी पई है। जरा सोच के देखो, जब असी दान पुण्य करते हैं, नेक कर्म करते हैं, उदों तो असी चर्च अंदर मंदिर अंदर जाने हैं, अपना नाम भी इश्तिहारां के अंदर कढ़ते हैं कि असी इतना दान किया। लेकिन जब कोई किसी ने पाप करना हुंदा है, बाप बेटा भी बैठ के सलाह नहीं करते, जिसका मौका लग्या पाप कर लिया। लेकिन इस संसार दे विच तुहानूं पता ही है, असी पुन्नां दा भी इनाम भोग रहे हैं, पापां की सजा भी दुनिया भोग रही है। पुन्नां दा इनाम की है? अच्छे घर पैदा होना, अच्छा दिमाग होना, तंदुरुस्ती होनी, अच्छे ख्याल होने, ये साडा पुन्नां दा इनाम है। पापां दा बदला की है? बीमारियां ज्यादा, गरीबी, दिमाग ठीक ना होना, ये पापां की सजा है। औले लंगड़े होना, ये पापां की सजा है। ये भी एक ऐसा असूल दुनिया भी है। लेकिन अंदर जाके देखिए तो बड़े बड़े नरक काल ने रचे हुए है, बड़े बड़े सजा उत्थे जीवां मलीन आत्मा नूं दित्तियां जा रही। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, पापी कर्म कमावंदे करदे हाय हाय, नानक ज्यों मत्थन मधानियां त्यों मत्थे धर्मराए। मैं एक अपने चश्मदीद वाक़े की तुहानूं कहानी दसना है। वो इस तरह है कि जीटी रोड के उत्ते एक्सीडेंट होया अज तो 35 साल पहला अमृतसर के पास। ट्रक आके गड्डियां दे विच वजया, 3-4 गड्डियां सन, उन्होंने ऊंट जुड़े हुए सी। 3 ऊंट मर गए, 1 ऊंट दीयां लत्तां टुट गईयां। बंदियां दी तां संभाल संभूल कीती, लेकिन जिहड़े ऊंट मर गए वो भी उत्थे पे। एक ऊंट जो जिउंदा सीगा उसकी किसी ने देखभाल नहीं करी, उसदियां लत्तां टुटियां सीगियां, जो मालक सन उसे तरह उसनूं छड्ड के चले गए। सोच के देखो कि उस जामे दे विच किहड़ी मां किहड़ी अदालत दे अगे वो जाके फरियाद कर सकदा सीगा भी मेरा कोई इलाज कराओ। लेकिन उसकी दर्द भरी मौत असीं देखी। हालांकि जिउंदा सी, वो की सी कि कां उस जिउंदे की कोशिश कर रहे सी अखां निकालण दी। हथ ओहदे नहीं सी कि जिहदे नाल वो कावां नूं उड़ा सके। धौण ही सी और सुबह दा धौण दे नाल ही इस तरह हिला छड्डदा सीगा। लेकिन दिल ये कहंदा सीगा भी थोड़े बहुत टाइम बाद इसदी अखां निकालणगे, लेकिन ये जिउंदा होएगा। जो भी आदमी उत्थों की बस पे या ट्रक पे लंघदा सीगा, उस हालत करनी देख के सब भगवान नूं याद करदा सीगा कि आ देखो भी माड़े कर्मां दी सजा। जरा सोच के तुसीं देख लो, इंसान दा जामा तां किते उसनूं भी मिलिया होएगा, हो सकदा तुहाडे साथ तो भी वो अच्छा होएगा। लेकिन इंसान दे जामे च भैड़े खोटे कर्म कीते, नाम की कमाई ना करनी, वो ऊंट के जामे च आया, लेकिन एक्सीडेंट होया,
ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਕੁਝ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, तो किस तरह जिਉਂਦੇ ਦੀ ਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ और पता नहीं वो कद बेचारा तड़फ के मरे। सिख इतिहास पढ़िया होएगा, बाबा बंदा बहादुर गुरु गोबिंद सिंह दा चोटी का सिख होया है। वो पहला पुंछ दे इलाके दा सी, कश्मीर दा, शिकार खेडदा हुंदा सी। एक दिन शिकार दे अंदर उसने हिरनी नूं मारिया। हिरनी दे पेट अंदर बच्चा सी। जद उसने उस बच्चे नूं तड़फदे नूं देखिया, उथों उसनूं चोट लगी कि ओहो ये हुण किहड़ी अदालत दे विच जाके फरियाद करे और इस दी कौन सुनदा है, मैं किहड़ा जुल्म कीता। इस नूं देख के उसने नाम प्राप्त किया। गुरु गोबिंद सिंह की शर्म दे विच आके गुरु गोबिंद सिंह के बड़े हुक्मां का पालन किया और गिनती का वो सिख गुरु गोबिंद सिंह का होया। मेरा पति अष्टांग योग करता है और इस वजह से उसको अंतरी ज्योत और नाथ का अनुभव प्राप्त है। तो सवाल मेरा ये है कि क्या काल इस तरह से आकर के ज्योत और नाथ का तजर्बा दे करके आत्माओं को पथभ्रष्ट कर सकता है? अगर कर सकता है तो आपके जो वाहेगुरु है, जो सबसे अकाल पुरुष जो है, भगवान जो है, उसने इतनी ताकत काल को क्यों दी है? ये तभी तुसी अंदर जाके सवाल करो भी उसने इतनी ताकत क्यों दी है, तो फिर ही थानू तसल्ली हो सकती है। जिथों तक जोत और नाद का अनुभव है, काल ने भी मिलदियां जुलदियां आवाज़ां अंदर रखियां है। ऐसी जोत रखी है, वो निचले चक्रां की आवाज़ हुंदी है और निचले मंडलों की वो जोत हुंदी है। मैं दसदा हुंदा है कि इस जोत ने मैनू किस तरह शुरू दे विच मैं इस ते मस्त रहिंदा सीगा। मैं सोचदा सीगा कि जोत नाद दा हर एक जगह जिक्र है, मैनू वो दिसदी है। लेकिन जब बाबा बिशन दास कोल गए, उसने दसिया कि नहीं बेटा, ये निचले चक्रां दी जोत है जो तेन दिसदी है, ये तेन धोखा दे बैठी है और असली जोत कोई होर है, लेकिन मैनू उसका पता नहीं। जब परम पिता कृपाल के चरणों के विच गए, फिर पता लग्या कि सतपुरुष की जोत या सतपुरुष की आवाज़ केड़ी है। क्योंकि पूरा गुरु नामदान के वक्त सतपुरुष की जोत का और शब्द का अनुभव करवाउंदा है। जिथे संतां दी अलफ बे शुरू हुंदी है, उत्थे जाके सारे खत्म हो जाते हैं, उन्हां दी आखिरी मंजिल हुंदी है। पिछली बातचीत के अंदर जो आखिरी सवाल था जो इसने ली ने किया था, वो ये था कि भी नाम तो मैंने महाराज जी से लिया है, लेकिन मैं आपसे और बाबा सावन सिंह से ज़्यादा प्रेरणा महसूस करता हूँ। तो आपका जवाब ये था कि ध्यान जो है वो अपने गुरु का करना चाहिए, अपने गुरु के प्रति ही श्रद्धालु रहना चाहिए। तो उसी जवाब के ऊपर मेरा ये सवाल है कि मेरे जैसे लोग, मैं और कई और ऐसे लोग हैं जिन्होंने महाराज की पाल को कभी दर्शन नहीं किए, उन लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो अपने आप को महाराज की पाल के प्रति श्रद्धालु बनाए, क्योंकि उन्होंने कभी उनको देखा नहीं। हमने आपको देखा, इसलिए हमारी श्रद्धा जो है वो ज़्यादा आपके ऊपर है। और मेरी समझ में ये आता है कि अगर हमारी श्रद्धा और प्यार आपके लिए है और वो एक ही ताकत है, तो आपके प्रति श्रद्धालु रहने से जो हमारी श्रद्धा है वो महाराज जी के प्रति भी बनती है। हाँ भाई, हर सत्संगी ने प्रेम प्यार न सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। आप कभी भी ये ना सोचो कि सानू प्रतिनिधि द्वारा नाम मिला है, असि महाराज ने शरीर के रूप से नहीं देखा। ये एक सच्चाई है। गुरु ने तो आपने देखा है ना, वो तो आपके अंदर बैठा है ना, वो तो आपकी आत्मा ने समझा है ना। अगर मेरे नाल सानू प्यार है, मेरे पे श्रद्धा है, तो मेरा कहना मनो, मेरा यही कहना है कि जो तो है, युग तो है, सौ काया होर पलटिए। क्योंकि जिस स्वरूप द्वारा नाम दिता जाता है, अंदर जब भी प्रगट होएगा वही स्वरूप साडे अंदर प्रगट होएगा।
ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਉਪਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਮਨ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਅਗਰ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। तो कहने का भाव जब महाराज सावन सिंह नूं, क्योंकि मैं आम मिलने का मौका मिलता रहिंदा सीगा, क्योंकि साडी पलटन ब्यास डेरे के पास रहिंदी सीगी। जब एक मैंने सवाल पूछा कि असी इस तरह का अनुभव किया, तुहाडे सिर उपर कलमी लगी सी, इस तरह पग उपर चक्कर सन। महाराज हस के कहने लगे, हाँ भाई, जाकी होए भावना जैसी हर मूर्त देखी कंते सी। वो कहने लगे जैसी तुहाडी भावना सी वही जिस पे श्रद्धा करते हो, अगर वो ताकत है तो पूरी करता है। याद रखो, सारी जिंदगी च ध्यान एक महात्मा का ही नशा करता है, अपना ध्यान नहीं बदलना। ध्यान जिन्होंने परम पिता कृपाल तो नाम मिलिया है उन्होंने दे रखना है। आप दे अंदर कोई रुकावट है, कोई शक है, तुसी मैनू पूछ सकते हो, मैं तुहाडी सेवा करने तैयार हाँ। महाराज सावन सिंह कहते हुंदे सीगे, जब बाबा जैमल सिंह जी चोला छड्डदे सीगे उदों आगरे जांदे हुंदे सी। वो कहते हुंदे सीगे कि उदों शेख प्रताप स्वामी जी महाराज दा भाई मौजूद सीगा, उन्हां नाल उन्हां दा बड़ा प्यार सी। वो कहते कि मैं ध्यान अपने गुरु दा बाबा जैमल सिंह दा करदा सीगा, लेकिन स्वामी जी के भाई जिहड़े सन वो नाराज नहीं हुंदे सीगे कि इन्हां दा आपदे गुरु का ध्यान क्यों करदा है, क्योंकि सारी जिंदगी प्यार एक ही महात्मा दे नाल, एक ही स्वरूप दे नाल ही असीं कर सकते हैं। वो भी जे किते बन जावे तां जो इन्हां दा उत्तराधिकारी हुंदा है वो इस ते नाराज नहीं हुंदा, बल्कि तुहाडी मदद करेगा। इहदे विच याद रखो, ध्यान तब्दील नहीं करना, वो तुहाडे अंदर है। मैं तुहानू बड़े प्यार नाल सलाह दी है, अगर तुहाडे अंदर कोई रुकावट है, शक है, बिला झिझक तुसीं मैनूं पूछ सकते हो, मैं तुहाडी सेवा करूंगा। सिमरन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसके बारे में काफी गलतफहमियां, काफी परेशानियां। हमें यह बताया गया कि हमें हमेशा ही सिमरन करते रहना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि जब हम भजन करने बैठते हैं आवाज सुनने के लिए, तब हमें सिमरन नहीं करना चाहिए। तो जब हम सिमरन हमेशा ही करते हैं तो भजन के टाइम सिमरन कैसे नहीं कर सकते? हाँ भाई, एक सवाल का मैं बहुत बारी स्पष्ट जवाब दिता है, लेकिन फिर भी असी उस जवाब नूं समझ नहीं रहे। मैं फिर दोहराउणा, नामदान दे वेले इसी तरह ही बताया जाता है कि तुसी एक वक्त में एक ही काम कर सकते हो। सिमरन करो, जब मन शांत हो जाता है, जो फिर हो जाती है, तुसी सिमरन
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਫੋਰਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਰੁਕੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚੰਦ। ਜਦੋਂ ਸਾਸ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਸਿਮਰਨ, ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਸਿਮਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੋਗੇ। ਜਦ ਐਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਫੌਰਨ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਜਦ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠਦੇ, 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਛਡਾਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਹਟ ਗਿਆ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਕਤ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ ਦਿਓ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, तो अगर साडा ये सिमरन पक जाता है तो फिर की है, जब भी असी चौंकड़ा मार के बैठांगे शब्द अपने आप ही साडे अंदर चालू हो जाएगा। मेरा उत्साह भंग हो गया है क्योंकि आज एक दिन और रह गया हमारे यहाँ पे, और कल से ऐसा हो रहा है अभ्यास के अंदर कि जब भी मैं अभ्यास करने के लिए बैठती तो सिमरन के बीच में अगर थोड़ी सी भी जगह है तो भी मेरा मन आ जाता है। पहले तो मेरा मन बहुत शांत हो गया था, लेकिन कल से क्या हो रहा है कि मेरा मन जो पागल हो गया। अगर सिमरन के बीच में थोड़ी सी भी जगह रह जाती है तो भी मन वहाँ पे आया था और मेरे को बहुत परेशान करता है। तो मेरे को इसलिए परेशानी है। बेशक अगर मैं अपने मन को बोलूँ कि भी तू भी चले जा, मैं तेरे बाद में बात करूंगी या बाद में करेंगे जो भी करना है, लेकिन फिर भी मन मेरा पीछा नहीं छोड़ता और वहाँ पे अभ्यास में मेरे को बहुत परेशानी पैदा करता है। तो पता नहीं मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है या मैंने आपको नाखुश कर दिया है, क्या बात हो गई है कि जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। और जब एक ही दिन बाकी रहा है तो मेरा उत्साह भंग हो गया। हाँ भाई, अच्छा मैं दसदा हुंदा है कि हार जाना उतना बुरा नहीं हुंदा जिन्नी हार मान लेनी बुरी हुंदी है। जितना मन हमला मजबूत होकर करता है तुसी उतना ही सिमरन दा हमला उसके ऊपर ज्यादा करो। कि दुश्मन दे अगे हथियार सिट के कोई आदमी कामयाब हो सकता है, क्योंकि साडा शत्रु दुश्मन साडा मन है। मजबूत रहना। अभ्यास के अंदर कई दफा ऐसा होता है कि जब मुझे नींद आ जाती है और जब मैं उठता हूँ तो मैं बहुत थकावट महसूस करता हूँ, लेकिन कई दफा ऐसा आता है कि जब अचेतन अवस्था आ जाती है कि जिसके अंदर ना तो मैं सोया होता हूँ ना मेरे को पता होता है कि मेरा कहाँ है। तो जब उस अवस्था से मैं जागृत होता हूँ तो मैं बहुत ही ताजगी महसूस करता हूँ। तो मेरा सवाल है कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि आत्मा ऊपर के मंडलों में चली जाती है और मन को पता नहीं होता कि आत्मा ऊपर चली गई है? मतलब हमारी जानकारी के बिना भी क्या आत्मा कभी ऊपर जाकर के आनंद उठा सकती है? यारे त्रिकुटी तक मन साफ जाता, मन ऐसा सुख नहीं, ऐसा ढिला नहीं, ऐसा कमजोर नहीं कि जिसनों ये ना पता लगे भी आत्मा हुण ऊपर चल रही है। त्रिकुटी तक पूरा मुकाबला करता है, वकील की तरह अगों रोकता है, दसदा है कि ऊपर क्या लेना जाके। पहली तो गल यह है कि मन आत्मा नूं अंदर वड़न ही नहीं दिंदा, बाहर ही बाहर रखने की कोशिश करता है। तो संगियां दा जिन्हां दा संघर्ष हुंदा है उन्हां नूं पता ही है कि बाहर मुखी किस तरह मन भटकाउंदा है। कदे किसी इंद्री नूं उदाले करता है, कदे किसी इंद्री नूं उदाले करता है, कदे काम नूं, कदे क्रोध नूं, कदे लोभ नूं, कितनियां इसने उदाले कर रखी हैं। एक दफा टूर के दौरान मेरे साथ भी वही ऐसी घटना हुई। मैं एक सत्संगी के साथ में यात्रा कर रही थी, तो एक बिल्ली थी, उसके ऊपर से हमारी गाड़ी चली गई और वो तकरीबन वहाँ पे मर गई। उसकी ऐसी हालत हो गई हम उसकी मदद भी नहीं कर सकते। हालांकि मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन सत्संगी था मेरे साथ में,
उसने मुझे कहा कि इसको यहाँ ही छोड़ दो, इसको जो इसके कर्म है भुगतने दो, क्योंकि महाराज कृपाल ने कोई ऐसी कहानी सुनाई थी जिसके अंदर जो इस तरह से जानवर हैं वो अपने कर्म भुगत के खत्म होते। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसी कभी घटना हो तो क्या उस जानवर की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए या उसको अपने कर्म भुगतने के लिए वहीं छोड़ देना चाहिए? देखो भाई, महाराज साहब सिंह कहने ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਾਰ ਦੀ ਖਲ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।